I would like to introduce the speakers of the Ireland session. So we have two speakers for the Ireland sessions. The first speaker is Dr. Huda Khan. Dr. Huda Khan is also my batchmate. She is from Amiruddin Medical College A3, and she's in Ireland for last 2 years and doing excellent there. And with that, we also have a second speaker, Dr. Hassan Abbas. Dr. Hassan Abbas did training in pediatrics from the Rehbar Medical College. He's also my batchmate, and he's going to Ireland by the CPSP route. With that, the dice is over to Dr. Huda. Dr. Huda, can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear Uh, me? Yes, we can. Thank you. Yeah. So I'll first quickly introduce myself. My name is Dr. Huda Khan. I'm working as a non-consultant hospital doctor in psychiatry in Beaumont Hospital, Dublin. I'm a graduate of Amiruddin Medical College. It was the third batch, and today it's truly an honor to stand here on behalf of all the alumni. And I'll always be grateful for my teachers and mentors, especially Dr. Muniza Said and Dr. Moin, who always encouraged us, to do great things in life. And today we are here to reflect our journeys. So I'll go very quickly because I have a patient scheduled in an hour. So can we please move on to the next presentation or next slide? So how to get registered with IMC? IMC is basically Ireland Irish Medical Council. So if you have done house job after 2009 in Pakistan, then you don't need any exam, for the licensing pathway to work in Ireland. But if you have done house job before 2009, you need an exam for completion of your registration. Next slide. So what are the requirements? Basically, this process starts after your MBBS and house job. So nothing to worry about in these 5 years of medical education. बस आप ये करें कि अपने concepts अच्छे रखें और जैसे आपकी house job ख़त्म होती है, get your MBBS degree, अपना PMDC हाउस जॉब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है आपने OET या IELTS देना है for your English language requirement. You need to have your valid passport and a good standing certificate from PMDC or PMC. Next slide. So just to keep things in mind, what are the acceptable patterns of house job rotation? So first of all, it should be a continuous 12 months rotation. There should be no gaps in between. There should be 3 months in general medicine and 3 months in general surgery. That is mandatory. And all the rest of the rotation should not be, more than 4 months or less than 2 months. For example, obgyn, peds, psychiatry, emergency medicine, radiology, and anesthesia. Next slide. So, if you have to choose an allied for general medicine, you can go for nephrology, geriatric medicine, rheumatology, respiratory medicine, gastroenterology, infectious diseases, neurology, dermatology, cardiology. Next slide. So for surgery, as I told you before, that 3 months of general surgery is mandatory. So after that, for allied, you can choose any of the other surgical allied neurosurgery, ophthalmic, ENT, pediatric, urology, etc. And I think this was the last slide. Next slide, please. Next. Yeah, so you can also consider anesthesia, obgyn, peds, emergency medicine, and psychiatry as I did. So, these all are the acceptable patterns of house job. Next slide. So after you have done your house job and you got your degree, what you have to do next is you have to verify your credentials and वो आपने किस तरह करवाना है Epic के through. So what is Epic? Epic is basically an electronic portfolio for international credentials that offers primary source verification of medical credentials to physician and organization. So once you verify your documents, that would be, I believe, your medical degree. And then, they are accepted for, in the global market. Next slide. So in support of the application to the Medical Council of Ireland,
what you have to do is, first of all, confirm your medical school is listed in the World School of Directory. Amiruddin is listed. And to be eligible for registration, you have to search it, and there's a link I have given, www.wdoms.org. So at here you can search your college name if it's listed or not. Next slide. So what would be the step 2 is getting started and establishing an Epic account. So for Epic, you can go to this link. This is the official website for Epic. And once they have processed your request, they will email you for information that you can access your account and then upload your credentials. Next slide. So you have to also confirm your identity, and that will also happen online when you log in to your account. Next. So after verification of your ID, you have to upload your credentials. That would be your degree and probably your house job certificate. Next slide. So when you have uploaded your documents, you have to make sure that all the verification reports should be sent to medical council directly. So there's an option where you have to tick the box. Yeah, next slide. Okay, so after you have uploaded your documents and you have sent it to verification, once it's uploaded on the Epic, they will contact your college directly. I remember at my time, when I got the email that they have been sent to verification to the college or to the hospital, I contacted them directly, and then they verified it very quickly in a day. So after your verification, you have to set up your Irish Medical Council account. You have to go to their official website, and you have to start the registration process. Next slide. So my pathway was from the certificate of experience route, like, after completing my house job. And as we know, after 2009, we all are exempted from the press exams. And there's another pathway, CPSP pathway, that my other colleague would be sharing soon. Next slide. So once, your IMC account is approved and, the application has been sent, you have to also physically send your documents by post to the Medical Council of Ireland, and that would include, copy of your passport, medical degree, OET. That should be attested by any lawyer or oath commissioner, and then you can send your documents via courier to Ireland and apply for a good standing certificate from PMC online portal. So at my time, there was the PMC online portal, but I don't know how one can apply for a good standing certificate. But I believe that you can, contact PMDC or PMC, the relevant body. So they will send the certificate directly to the Irish Medical Council, and after that, you have to pay your application fee. For a year, it is almost 500 euros. Next slide. So once they have, assessed your application, they will send you a final form called Gen Form. So it will take a couple of months. Nowadays it's taking more than 6 months. So you have to fill that form, and in this form, there are details of your graduation, your clinical experience, etc. And then you have to send the form to the Medical Council back, pay the fee, and your registration will be active and you can apply for jobs. Next slide. Thank you. So that was a very quick presentation. If anyone needs guidance, to work as a doctor in Ireland, they can contact me directly. And just, in these 5 years of medical school, make sure your concepts are good, your clinical knowledge is good, and after a house job or, during even medical school, pay good attention to
research work, clinical audits, any quality improvement projects, and even after that, so that can build up your CV. So I remember since my first year of medical school, I have done quite presentations in physiology with Dr. Muniza, and that really helped me, boosting my CV for my undergraduate experience, and then you can move it to your postgraduate level. So if you have any questions, you can ask me. और मैं प्रेफर करूंगा मैं आपसे ना उर्दू में बात करूं। और एक्चुअली जो है ना आप सब लोग जो है ना जब यहाँ पे बैठे हो ठीक होगा, यहाँ पे एग्जैक्टली मैं जो है ना 3 साल पहले मैं भी बैठा हुआ था। और मेरे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि ये सेमिनार्स, अगर ये पाथवे तो आप हर जगह देख सकते हो, ठीक है, इजीली एक्सेसिबल है, सब कुछ है। पहले बात आपको पता हो कि भाई क्या ये पाथवे मैं अभी चूज करूं कि ना करूं, और क्या अभी चूज करना है तो क्या अभी से काम इसके ऊपर करना है कि बाद में करना है, और ये मेरे लिए कितना एप्लीकेबल है, प्रैक्टिकल कितना है। ठीक है, तो ये 3 चीजों के आंसर आपको पता होने चाहिए आफ्टर दिस सेमिनार वट एवर इट्स गोइंग टू बी। ठीक है, तो मैं जो हूँ आपको आइलैंड पाथवे पे बताऊंगा। मेरा नाम डॉक्टर हसन अब्बास है एंड आई एम करंटली वर्किंग एज अ PG4 इन पंजाब रेंजर्स टीचिंग हॉस्पिटल इन पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट। और साथ जो है मैं रोटेशन पे आया हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। एंड आई हैव बीन सिलेक्टेड एज अ रजिस्ट्रार इन लेटेस्ट कैनी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इन आयरलैंड। तो ये मेरी अचीवमेंट है इन 3.5 years, along with I have done MRCPCH and also FCPS Part 1 along with IMM and multiple researches and everything। ठीक है, ये 3 सालों में मैंने अचीव किया। ठीक होगा, लेकिन इसके पीछे हार्डवर्क वर्क होती है, लेकिन ये सारा कुछ जो है ना ये जाता है जब आपने प्लान किया हो चीजें। ठीक होगा, प्लान आपने करनी होती है, आपने लॉन्गर टर्म में सोचना होता है कि मैंने ये अगले 3-4 सालों में मैंने इस मुल्क से बाहर निकलना, बस मैंने एक ही चीज सोची थी। ठीक है, मैंने और बाहर जाने से अम्मा अब्बा जाने से रोकते थे कि भाई तुमने नहीं जाना। तो दूसरा फिर जवाब आता है कि अच्छा यहाँ पे मुल्क में डिग्री करता हूँ और उसके साथ मेरे पास एक ऐसी डिग्री हो जिससे मेरे पास हर वक्त ऑप्शन खुला हो कि मैं बाहर जा सकूं। तो मेरे 2 ही पर्सपेक्टिव थे एट द एंड ऑफ माई MBBS। तो आई गेव माई FCPS एंड देन स्टार्टेड द ट्रेनिंग ओवर देयर। फिर उसके बाद जो है अलॉन्ग विद इट आई स्टार्टेड माई MRCPH एग्जाम। ठीक है, MRCPH से जो है ना आप MRCPCH, MRCP, MRCPI, कुछ CS सॉरी, ठीक है, ये आप लोग जो है ना अपनी हाउस ऑफ के फौरन बाद दे सकते हो। इट्स इजीली डूएबल एंड एवरीबडी कैन डू इट। ठीक हो गया, तो ये आपको एक टिकट है कि भाई आप जब मर्जी चाहो बाहर जाके जो है ना उनकी ट्रेनिंग ईयर्स में एंटर हो सकते हो। तो आप 2-2 महीने की, मैंने 2-2 महीने की तैयारी के साथ दिया था, 2 महीने में 1 पार्ट, 2 महीने में 2 पार्ट, फिर क्लिनिकल, फिर इस तरह। ठीक है, तो अब जो मैं आपको आयरलैंड का पाथवे बताने लगा हूं वो है HSE-CPSP का पाथवे आता है। हम जब FCPS में एंटर होते हैं तो आफ्टर IMM आपके पास एक ऑप्शन आती है कि आइदर यू कैन अप्लाई टू UK और इन आयरलैंड। और वहां पे जो होते हैं ना, पहली चीज इस पाथवे में कोई सिफारिश नहीं है, तो ये सबके लिए इजी है और जो इसके लिए सूटेबल होगा वो सिलेक्ट होगा। ठीक है, कोई सिफारिश कुछ भी नहीं होता क्योंकि इसमें आयरिश लोग सिलेक्ट करते हैं या UK के लोग सिलेक्ट करते हैं। और इसमें अप्लाई कौन कर सकते हैं, पहली बात कि आपने जो है ना जब आप FCPS कर रहे हो तो आपका यहाँ का भी टिकट बुक है और आपने अपना बाहर का टिकट करवाना है, तो हाँ जी आप इस पाथवे के ऊपर चल सकते हो। ठीक होगा, आफ्टर पोस्ट IMM, ठीक है, IMM के बाद जो है ये आती है सीट इन अक्टूबर, और अक्टूबर में आती है पहली बार सीट, एक आती है सितंबर अक्टूबर के ऊपर, और एक सीट आती है अप्रैल मई के अंदर आती है। ठीक है, ये 2 दफा सीट आती है। लेकिन इसके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए 6 माह के लिए जो होता है ना होनी चाहिए, 6 माह की ट्रेनिंग एटलीस्ट पड़ी हो। तो मतलब आप अपने पोस्ट IMM सिर्फ एक दफा अप्लाई कर सकते हो। ओनली यू हैव वन ऑप्शन टू अप्लाई फॉर दिस। तो लेट मी स्टार्ट विद दिस। ये जो होता है व्हाट इज दिस पाथवे, इसमें जो होता है ना आपका ये आयरलैंड, हमारी CPSP ने बाहर वाले जो हैं प्रोग्राम्स UK और आयरलैंड, इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि वील सेंड फ्यू ग्रेजुएट्स फ्रॉम देयर जो कि 2 साल के आपके पास ट्रेनिंग करेंगे और फिर आके अपने मुल्क को सर्व करेंगे बैक। ठीक है, तो ये हु कैन अप्लाई, सिर्फ FCPS ग्रेजुएट कर सकते हैं इस रूट के ऊपर अप्लाई। MS ये जो MD वाले हैं वो नहीं कर सकते, सिर्फ FCPS वाले, और अपनी ट्रेनिंग के अंदर कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग एन IMM डिग्री। तो ये एक है हु कैन अप्लाई, सॉरी हु कैन अप्लाई FCPS, यू शुड हैव अ IMM डिग्री। आपका OET उस वक्त क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब मुझे याद है मैंने जो है ना FCPS IMM दिया था इन 14 Feb को दिया था। ठीक है, तो दिस डेट कांट बी फॉरगॉटन है।
और साथ जो होता है उसके बाद मेरा जो है ना वो बहुत डिले हुआ था, टॉक्स बहुत डिले हुआ था। ये मेरा आया था अप्रैल में, और जो सीट्स आई थी वो जून में अपेयर हुई थी, जून के एंड पे उन्होंने खत्म कर दी थी, तो 1 महीने के लिए सीट आई थी। उसमें मैंने अप्लाई किया था और मेरा इंटरव्यू दिसंबर में आया था। और दिसंबर में उन्होंने 3 इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए थे। तो पहला, दूसरा, फिर तीसरे में शॉर्ट लिस्टिंग हो के फिर तीसरे के अंदर जो रिजल्ट आया था उसमें मैं सिलेक्ट हुआ था। तो ये था मेजर पाथवे, और उसके बाद एवरीथिंग इन देयर हैंड। लेकिन बात ये है कि आपका जो है ना ओईटी इसके एप्लीकेशन से पहले पहले क्लियर होना चाहिए। तो मैंने जो है ओईटी मैंने दिया था इन मार्च में, मैंने अपना ओईटी दिया था, पिछले साल मार्च में ओईटी दिया था। तो ओईटी आपका क्लियर होना चाहिए। वेन टू अप्लाई, ये तो आपको आंसर पता लग गया होगा कि अगस्त एंड सितंबर, अप्रैल और मई में अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, ये सीट्स आते कब हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन। ये सीट्स जो है ना आपको नहीं पता लगता कि कब आई हैं, कब चली गई, और अक्सर ये मिस हो जाती हैं। तो ये एक ईमेल है, इसको अगर पिक्चर ले लें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप ईमेल उनको करते रहें या सीपीएसपी की वेबसाइट के ऊपर खुद आपने जाते रहना, और उनको हर हफ्ते डेढ़ बाद आपने देखना वहां पे सीट आई है कि नहीं आई। ठीक है, और हमेशा असेस करना अपने लैपटॉप से, क्योंकि टैब और आपके मोबाइल से ये सीट्स नहीं शो होती, वहां पे आपके आती हैं जब आप लैपटॉप से अपना सीपीएससी पोर्टल एसेस करते हो। तो व्हाट हैपन व्हेन यू आर सिलेक्टेड, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सिफारिश नहीं चाहिए होती। तो हर एक आम हम लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कोई मसला नहीं है। दूसरी बात, यू आर कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, देन देयर इज अ शॉर्ट लिस्टिंग एंड यू गेट सिलेक्टेड इनटू दिस रूट। और इफ नॉट सिलेक्टेड देन यू हैव अनदर पाथ विच यू हैव बीन सिलेक्टेड। ठीक है, अब इसके फायदे क्या हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई मैं ये चूज करूं तो क्यों करूं, क्यों? इसका ये फायदा है, एक तो आपको बाहर की टिकट मिल गई, यहाँ की भी टिकट मिल गई, दोनों की। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको एमआर वहां से आपको आयरिश मेडिकल काउंसिल आपको रजिस्टर कर लेगा, और आपको जो है ना आपको वहां की डिग्री मिल जाएगी कि इसने 2 साल हमारे पास ट्रेनिंग की। ये आके 2 साल बाद आके कभी भी वहां पे ट्रेनिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है और ट्रेनिंग कर सकता है मजीद 2 साल की। ठीक है, पहली बात। तो और आपको यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी कि यहाँ का एफसीपीएस भी आपका हुआ हुआ है, तो 2 डिग्रीज आपको एक साथ ही मिल जाती हैं। दूसरी बात, ये सारा मुफ्त है, 1 रुपया भी आपका नहीं लगना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी है, क्योंकि आपकी यहाँ पे जो आपने ओईटी दिया, आपने आयरिश मेडिकल काउंसिल के लिए रजिस्ट्रेशन की, आपके आने जाने के एक्सपेंसेस जो मैं लाहौर में जितने पैसे मैं लगा रहा हूँ सारे मैंने वहां पे जाके क्लेम करने हैं। ठीक होगा, एंड एवरीथिंग इज बीइंग क्लेम्ड ओवर देयर। वहां पे जाके आपको सारे पैसे आपको रिटर्न होंगे। पहला फायदा मुफ्त है ये। दूसरा इसका फायदा ये है कि जब आपने वहां पे जाना है तो आपको जो है ना एजुकेशनल अलाउंस मिलता है। तो वहां पे जाके आपने अगर आपने स्टेप्स सोचे हैं वो आप लोग अपने करो, एमआरसीपीसीएच सोचा हुआ है, सीआई सोचा हुआ है, जोन सा एग्जाम सोचा हुआ है वो आप करो, वहां की रिसर्च वर्क्स करने हैं वो करो, सारा फंडेड है। ठीक है, आपने एजुकेशनल अलाउंस के ऊपर अपना बजट डालना है और वो आपको 2 वीक्स में आपको रिटर्न बैक कर देते हैं कि भाई इसने पैसे वहां पे लगाए और उसको आपको रिटर्न हो जाएंगे। तो मतलब ये मुफ्त है, पढ़ाई वहां पे मुफ्त कर सकते हो, एग्जाम मुफ्त कर सकते हो, और ये सारा जो है ना आपको फंडेड है, और 2 डिग्रीज मिल रही हैं। और एट द एंड ऑफ दिस 2 years ऑफ ट्रेनिंग, तो आपको क्या है, स्टेम्प 4 मिल जाता है। स्टेम्प 4 क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको जो है 21 मार्क की आपको चाहिए होती है इसमें, तो हमने तो 24 मार्क करने होते हैं। ये करने के बाद जो है ना आपको वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, स्टेम्प 4। आप जब मर्जी जो है ना आप आयरलैंड आ जा सकते हो, आपको वीजा नहीं चाहिए होता। तो आयरलैंड इज ओपन फॉर यू गाइस आफ्टर दिस। ठीक है, यू विल गेट स्टेम्प 4। और अगली बात, पैसे। भाई पैसे तो वहां पे बहुत हैं। ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग इट रेंजेस फ्रॉम 4200 टू 5500 यूरोस, और इससे ऊपर जितनी छलांग मार सकते हो तो कर लो। और एट द एंड ऑफ दिस इज टैक्स फ्री। यू विल गेट होल ऑफ द टैक्स यू हैव गिवन टू द स्टेट एंड यू विल गेट इट बैक। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फायदा है। ये वो चीजें हैं जो कि मैंने सर्च आउट की, जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में आई हैं लिखी हुई, सारा कुछ वो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये अपने से बना के नहीं बता रहा। ये जो है ना टैक्स फ्री है। आपको टैक्स उस वक्त देना पड़ेगा, यू हैव टू पे द टैक्स, लेकिन जब आप 2 साल की ट्रेनिंग के बाद वापस आओगे आपको सारा टैक्स रिटर्न होगा, और वो काफी ज्यादा अच्छी अमाउंट बन जाती है। और वर्किंग आवर्स, दे आर रियली फ्लेक्सिबल एंड दे आर वेरी गुड। 39 मिनिमम आवर्स हैं, एडिशनल आवर्स डिपेंड करता है आपका हॉस्पिटल कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग होगा। और वहां पे गए हो तो आपको 1-1 घंटे के पैसे मिलेंगे, ना कि यहाँ पे भाई तुमने एनजी नहीं की, फॉलिस नहीं की, चला के काम करो और ये जो है ना तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। भाई आपने वहां पे काम करना है, पैसे लेने ही लेने हैं। ठीक है, और उसके मिलेंगे। ठीक है, तो मुफ्ते का सीन वहां पे नहीं है, यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इट्स रियली टेरेबल ओवर हियर। ओके, नाउ कमिंग टू अदर पॉइंट। हाँ, ये एजुकेशनल मैंने आपको सारा बता दिया है। यू कैन गिव एनी एग्जाम, आप वर्कशॉप्स जाओ,
वहां पे आपके पोस्टर प्रेजेंटेशन किसी और मुल्क में एक्सेप्ट हुई है, आप वहां पे जाओ, मुफ्त जाओगे, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हर चीज वो आपको गवर्नमेंट करेगी और वो आपका हॉस्पिटल स्पॉन्सर करेगा, यू विल गेट इट बैक। ठीक है, ओह सॉरी। और हाँ, इसके नुकसान क्या है? अब मेरी जो रोटेशन थी 26 में खत्म होनी थी, इसके लिए मेरी अब 27 में चली गई रोटेशन। एक नुकसान सबसे बड़ा ये है कि मेरा 1 साल डिले हो गया। लेकिन अगर मैं इन प्रॉस को देखूं तो दिस ये जो थोड़ा सा कौन है वो एक्सेप्टेबल है। एंड सेकेंडली यू आर अवे फ्रॉम योर होम, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। और एक और बात कि इसके बाद जो है ना आपसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, यू हैव टू कम बैक टू योर कंट्री एंड सर्व ओवर हियर फॉर एटलीस्ट 1 to 2 years। उन्होंने मेरे से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि आई हैव टू कम बैक, बट देयर आर ऑलवेज अनदर पाथ। ठीक है, तो आप वहां पे बैठो, आप बाकी एग्जाम दो, तो बाकी मुल्क आपके लिए खुले हैं, यूके खुला हुआ है, वहां से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तमाम मुल्क आपके लिए खुले हैं। ठीक है, जस्ट गिव योर एग्जाम एंड यू कैन गो एनीवेयर। तो इसके नुकसान ये है। तो ये था इसका पाथवे आयरलैंड का। तो अभी मेरे ख्याल में 1-2 मिनट में ले सकता हूँ, अगर किसी को कोई बात पूछनी हो तो ही कैन आस्क, अगर लेजिट किसी को क्वेश्चन आ रहा हो, अदरवाइज वी कैन डिस्कस इट आफ्टरवर्ड। ठीक है, तो दिस इज अ गुड पाथवे, ताकि आप अपने ड्रीम्स भी कर सकते हो, अपने पैसों से कर सकते हो सारा कुछ। तो ये थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड टेकिंग टाइम आउट फॉर दिस, थैंक यू।